Hello, friends. I hope you all are well and good. My name is Nishant, and we will be discussing geography. To start with geography, we will pick the most important part of geography, that is Indian geography. This Indian geography will be discussed into several modules, or you can say chapters. These module will be having several topics. So the first topic is locational aspects. To understand the locational aspects, we will be discussing the role of latitudes and longitudes. So, starting with the role of latitudes, we might have heard of latitudes as an imaginary horizontal lines, as given in this diagram. See this is these are horizontal lines. I will break a myth today. There is a difference between latitude and latitudinal lines. Latitude is something which is called an angle. Every line made on this angle is called as latitudinal line. Sir, how an angle is made? See this diagram. Look at this diagram. See, this is the center of the earth. We have divided the earth into two equal parts. From the center of the earth, we will draw a base, and taking this base as 0 degree, taking this as base, hence we will have to take it as 0 degree. We'll draw an angle of 10 degree, 20 degree, 30 degree, 40, 50, 60 until 90. Similarly, on the other side, 10, 20, 30, 40, 50, 60 and 90. These angles are latitudes, and every line made on these angle is latitudinal line. If we want to see the clear picture of the latitudinal line, here it is. They are the latitudinal lines. Now, a simple question which can be asked is how many latitudes do we have? How many latitudes do we have? Latitudes here means angles. So to count the number of angles, starting from here, 1 degree, 2 degree, 3, 4, 5, 6 till 90 degree. So 90 angles in the northern hemisphere plus 90 angles in the southern hemisphere plus one angle of 0 degree plus this is in northern hemisphere, this is in southern hemisphere, and this is a 0 degree angle. So in total, we have we have 181 latitudes. 181 latitudes. It's not 181 degree, guys. He has asked the number of latitudes. So the number of latitudes is 181. Coming on to the latitudinal lines. If we count latitudinal lines on the basis of the latitudes. Sir, you said that every latitude, हर एक latitude पे हमारे पास एक latitudinal line होगी. So the answer is simple ना. हमारे पास latitudes कितने हैं? 181. तो हमारे पास latitudinal lines कितनी होंगी? 181. नहीं. No, this is not the point. Look at this picture carefully. These are the lines. Say this is 70 degree latitude. Say this is 80 degree latitude. Say this is 80 degree. This is 70 degree, and say this is 60 degree.
90 degree will be here, it will be here. No doubt it will be here. So on 90 degree, do we have a line or a point? A very tricky question, a very interesting question. Do we have a line or a point over here? So the answer is clear. It is a point over here. So the way there will be a point on the northern hemisphere, similarly there will be a point in the southern hemisphere also. It's obvious. So we will be deducting 2 points from the number of latitudes. 2 points from the number of latitudes. The number of latitudes were in 181, deducting 2, because the 2 are the points, it will be 179 latitudinal lines. So we have latitudinal lines, the number of latitudinal lines is 179. I hope that is totally clear to you. Now, discussing about the important latitudinal lines. Some of the important latitudinal lines are, say this is 0 degree from 23 and a half, that is Tropic of Cancer in the northern hemisphere. This is the southern hemisphere. Here it is Tropic of Capricorn. Here it's Arctic Circle, that is 66 and a half degree north. Here it is Antarctic Circle, that is 66 and a half degree. Sorry, it should be south here. It should be south here, and it should be north here. There's a mistake in the diagram. Anyways, so Arctic Circle in the north, Antarctic Circle in the south, Tropic of Cancer in the south, sorry, Tropic of Capricorn in the south, Tropic of Cancer in the north, and equator in the middle. Now, what is the importance of these latitudinal lines? The importance of the latitudinal line is that as the angle of latitude will rise, the angle of the latitude will rise, the sunlight will decrease. The sunlight will decrease. Means, or you can say, as the angle of latitude will fall, will become less, the sunlight will increase. The sunlight will increase. Sir, how it is possible? We all know that on equator we have the maximum light. On equator we have the maximum light. So as I will move towards the north pole, or as I will move towards the south pole, the angle of the latitude will increase. Certainly it will increase. It's obvious. There's nothing to learn in it. There's nothing to cram in it. It will increase as I will move towards the pole. So the sunlight, and as I will move towards the pole, the sunlight, the impact of sunlight, or I can say the insolation will decrease. Insolation is the heat energy. Insolation is the heat energy. Okay, it is the heat energy. So the insolation will decrease, because say if it is sun here, अब ये मत लड़ना मेरे से, सर आपने सन इतना छोटा कैसे बना दिया अर्थ से, है ना, ये बात डिस्कस करने वाली नहीं है. तो द डायरेक्ट सनलाइट विल बी हियर, और यहां पर जो सनलाइट आएगी वो कैसी आएगी? इनडायरेक्ट आएगी. सो दिस इज द रीजन कि इक्वेटर पर हमारे पास सबसे ज्यादा लाइट होती है, सबसे ज्यादा गर्मी होती है, और यहाँ पर जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे, एज वी मूव टुवर्ड्स द पोल, द इम्पैक्ट ऑफ सनलाइट और सो कॉल्ड इंसोलेशन will decrease. So this is the importance of sunlight. Achha, from these 2 points, what I can say is that there is an inverse relation between
angle of latitude and sunlight, or you can write here insolation. I hope it's all clear here. Okay. Next, coming on to the longitude. Coming on to the longitude, to understand the role of longitudes. Role of longitudes. Again, a simple, very simple definition, that they are the imaginary vertical lines. Okay, imaginary vertical lines. Now, they are also, these latitudinal lines, longitudinal lines are also made in the same way. We took the center of the earth, यहाँ पर हमने base बनाया say 0 degree. On the basis of that base, we made angle 10 degree, 20, 30, and it's going on till 90, it's going on till 180. On the other hand, this is the eastern side. On the western side also, we made 10, 20, 30, 40 to 60, going till 90 and moving till 180. Sir, how many longitudes? How many longitudes? Longitudes here means angle. How many longitudes do we have, sir? It's very simple, sir. 1 to 36, 1 to 180 on the western side, plus 1 to 180. Sorry, 1 to, let's not take it this way. Sir, 1 to 179 on the one side, on the western side, 1 to 179 on the eastern side, one angle of 0 degree and one angle of 180. So this is on the western side, this is on the eastern side, this is the 0 degree angle, and this is the 180 degree angle. The total will be number of longitudes, not the longitudinal lines, number of longitudes will be longitudes. Number of longitudes will be 180. Sorry, 360. I'm really sorry. Its number of longitude will be 360. Now, sir, how many longitudinal lines do we have? How many longitudinal lines do we have? हमारे पास longitudinal lines कितनी है? So let's count it. So simple ही तो है कि 360 longitudes हैं, तो it can be 360 lines only. होगा यही, but some students might be having a doubt कि सर देखो सिंपल सी बात है ना, 0 डिग्री वाली जो लाइन है ये, सर 180 वाली भी तो पीछे वही है. अच्छा बिल्कुल सही. सर ये जो 30 डिग्री वाली है, यही तो 150 डिग्री है उधर की साइड, वेस्टर्न साइड, ईस्टर्न साइड पे. आपका पॉइंट सही है, बट एज पर ज्योग्राफी a longitudinal line is what which is starting from northern hemisphere and it goes till southern hemisphere on the single side only. The definition of longitudinal line, the wrong definition of longitudinal line will be starting from the northern hemisphere, coming to the south pole, so starting from the north pole, coming to the south pole, passing the south pole, and again coming to the north pole. That is not a longitudinal line. The correct definition of longitudinal line is starting from the north pole, ending to the south pole. I hope that's totally clear to you. So in this way, the number of longitudinal lines will be similar or same to the longitudes. It will be 360 only. So the number of longitudinal lines is 360 only. It is a very important question which is asked and students usually get confused on this question. वहां पे आप गिनने तो बैठोगे नहीं, आपका दिमाग वहां पर उस समय बंद हो जाता होता है ना, एग्जाम time due to constraint of time. Okay, so a simple rule of longitude. अच्छा, the use of longitude will be, जैसे the use of latitude was कि यहां पर हमारे पास क्या होगा, it will be hot here, comparatively hotter, or you can write if around comparison, it will be hotter here, it will be
colder here because the sunlight, the slant rays are which reach here. यहाँ पर हमारे पास जो रेज आएंगी वो डायरेक्ट नहीं होंगी, वो इनडायरेक्ट होंगी। यहाँ पर हमारे पास इस वाले रीजन में थोड़ी सी डायरेक्ट सनलाइट आएगी। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, अच्छा लॉन्गिट्यूडनल की हम बात कर रहे थे ना, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस की। लॉन्गिट्यूडनल लाइंस की अगर मैं बात करूं तो एक बात समझना, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस का यूज समझना। फॉर अ मिनट, नॉट मोर देन दैट, फॉर अ मिनट एक बार के लिए थोड़ा सा इगोइस्टिक हो जाए, अहंकार आ जाए थोड़ा सा ना। इमेजिन योरसेल्फ, यू आर सन, ये वाला सन नहीं भैया, ये वाले सन आप हो गए, मैं ये वाले सन की बात कर रहा हूं। ओके, इमेजिन यू आर सन, और इमेजिन करो कि आपके सामने अर्थ रोटेट कर रही है, रिवॉल्व नहीं कर रही है, क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, इट्स रोटेटिंग। अर्थ आपके सामने रोटेट कर रही है। नाउ टेल मी कि आपके सामने क्या लेटीट्यूड्स चेंज होंगे या लॉन्गिट्यूड्स चेंज होंगे? दिस इज द साइन ऑफ रोटेशन। बताओ मेरे को कि व्हाट विल चेंज, लॉन्गिट्यूड्स चेंज होंगे या लेटीट्यूड्स चेंज होंगे? सिंपली अ वेरी सिंपल आंसर कि सर लॉन्गिट्यूड्स चेंज होंगे। तो अर्थ के जब लॉन्गिट्यूड्स चेंज होंगे, इसके मान लो से दिस इज द सन ओवर हेयर, यहां पे लाइट आ रही है, ये इस तरह से रोटेट कर रही है, इसके लॉन्गिट्यूड्स चेंज हो रहे हैं, तो व्हाट विल चेंज, द डेट विल चेंज, व्हाट विल चेंज, द टाइम विल चेंज। आई होप दैट्स टोटली क्लियर टू यू। द टाइम एंड द डेट विल चेंज, जो टाइम और जो डेट होगा वो चेंज होगा। कैसे समझना इस चीज को? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेंज होगा, टाइम एंड डेट चेंज होगी। लॉन्गिट्यूड्स की भी बात करते हैं, पहले लॉन्गिट्यूड्स की बात कर लें। फॉर इन केस से दिस इज द फ्लैट अर्थ, जो आप वर्ल्ड मैप देखते हो ना, वर्ल्ड मैप, वैसे उस तरह से फ्लैट अर्थ है ये, है ना। फॉर इन केस there's a person A over here, there's a person B over here, there's a person C over here, है ना। और एक मिनट रुकना, इसको इरेज कर दो, मैं इसको ऐसे समझते हैं थोड़ा सा, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ चलो, नाउ हमारे पास द सन इज गिवन, द सन इज गिवन समवेयर हेयर, यहां पे है हमारे पास सन। ओके, ये है सूरज बाबा। वन थिंग विच इज क्लियर इज कि इनकी जो डायरेक्ट सनलाइट है वो कहां पड़ रही है, ए पे। सो सर्टेनली व्हाट आई कैन से इज, यहां पर क्या टाइम मूव होगा, 12 नून। ठीक है, पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू इज कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। सबसे पहले तो इस स्टेटमेंट को भूल जाओ। एक्चुअली द स्टेटमेंट इज दैट अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू east, and if earth rotates from west to east, it is implied that sun rises from the east. Sun rises from the east in itself is a wrong statement. It is earth which revolves from west to east. So sun rises from the east is a wrong statement, earth rotates from west to east, and it implies, it seems that sun is rising from the east. अच्छा, तो व्हाट आई कैन से इज कि सर सी ने, इसका मतलब सर सी ने क्या किया होगा, सी के यहां पर इवनिंग होगी कहीं पर आसपास, इसने सूरज देख लिया अपने पूरे दिन में, देयर माइट बी इवनिंग ओवर हियर। तो व्हाट आई कैन से इज कि फॉर इन केस मैं यहां पर शाम का 5 बजे का टाइम लेता हूं, 5 PM, या 5 PM नहीं, से 12 + 5 17 आवर्स ले लेता हूं मैं इधर।
इवनिंग है इधर यहां पर। ओके, बी वाले रीजन में जहां पर बी रह रहा है वहां पर तो सर अभी सुबह के मॉर्निंग है, अभी तो सुबह के सर आप ऐसे समझ लो कि सूरज तो थोड़ा थोड़ा पहुंच गया, सुबह के 5-6 बज गए। तो लेट्स टेक एट 6 AM या 6 आवर्स भी ले लेता हूं मैं इसको तो भी ठीक है। ओके, नाउ टेल मी वन थिंग, इट्स 12 हियर। ओके, टू मूव फ्रॉम 12 to 17 आई विल हैव टू प्लस समथिंग, है ना। अगर मैं 12 में कुछ प्लस करूंगा तो ही 17 पे पहुंचूंगा। टू मूव फ्रॉम 12 to 6 आई विल हैव टू डिडक्ट समथिंग। क्यों? 12 से 6 में जाने में मुझे कुछ माइनस ही करना पड़ेगा। होप दैट्स क्लियर टू यू। बस ये चीज याद होगी, अब सुनना ध्यान से। इट मीन्स दिस इज वेस्ट, दिस इज if I will, listen to me carefully, if I will move on earth from west to east, I will have to add the time. And if I will have to move from east to west, I will have to deduct the time. I hope that's totally clear to you. Simple example, इसको देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो प्लस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट माइनस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। सर ये टाइम प्लस और माइनस करना कितना है ये तो बताओ। सुनो ध्यान से, जो आपको टाइम प्लस और माइनस करना है दैट इज, एक चीज का ध्यान रखना कि हमारे पास 360 लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं, हमारे पास आवर्स कितने हैं 24। सिंपल मैथमेटिक्स, 360 अपॉन 24 इज इक्वल्स टू 1 आवर। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इट विल बी 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर। इतना आपको डिडक्ट या ऐड करना है। हर 15 डिग्री का लैटिट्यूड, जितने आप 15 डिग्री का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अगर आप कवर करोगे तो आपको 1 घंटे से टाइम चेंज करना पड़ेगा। सर मैं तो 1 डिग्री गया, सुन लो फिर, 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 आवर। ठीक है, 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। ओके सर, 1 डिग्री is equals to 60 upon 15. So 1 degree is equals to 4 minutes. I hope that is totally clear to you. मैं अब 7th 8th क्लास की मैथ्स करवाने नहीं बैठ सकता हूँ यहाँ पे, है ना। ये दो चीजें आप याद रख सकते हो, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। सर ये क्यों करवाया? ये इसलिए करवाया क्योंकि आपको पता लगे कि हमें कितना डिडक्ट करना है और कितना ऐड करना है। ठीक है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सो यू हैव टू डिडक्ट 1 आवर फॉर एवरी 15 डिग्री एंड 4 मिनट फॉर एवरी 1 डिग्री। ठीक है, सो दिस इज, आई होप दिस इज टोटली क्लियर टू यू रिगार्डिंग द रिलेशन ऑफ longitude and time. Okay, now coming on to the next, longitude and date। longitude and date का रिलेशन देखते हैं। To understand the relation between longitude and date, you will have to take a sheet। एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी छोटी सी, अगर आप चाहते हो कि यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्रैम नहीं करना है, हमने रट्टा नहीं मारना है, मेरे को समझना है। सुनना ध्यान से, वर्ल्ड मैप आई हैव मेड द अर्थ फ्लैट। मैंने बीच में बना दी एक 0 डिग्री, याद है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन, 0 डिग्री। यहां पर क्या हो जाएगी 179 एक्सट्रीम, 179, और इनको दोनों को जब मैं मिलाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा ना। अर्थ नो वो है हमारे पास। अच्छा, अर्थ की शेप क्या है? अर्थ की शेप, इट इज जियोइड। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो ये जियोइड याद नहीं होता भैया, आप क्या पढ़ रहे हो? जियोग्राफी। अच्छा, जियो का मतलब क्या होता है भैया? अर्थ होता है। ग्राफी का मतलब क्या होता है भैया? स्टडी होता है। अब नाउ अर्थ की शेप वाज समथिंग लाइक कि वो पूरी तरह से स्फेयर नहीं थी। इट वॉज नॉट टोटली स्फेयर, इट वॉज नॉट अ स्फेरिकल शेप। सो वॉट द डिड इज, अच्छा अर्थ की शेप कैसी थी?
सर इट वॉज फ्लैट एट द पोल्स एंड बल्ज एट द इक्वेटर। तो ये तो सर अपने आप में एक अलग शेप है, इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया, अर्थ लाइक शेप। अर्थ लाइक शेप, जियो, जियो, अर्थ, आइड, जियोइड, अर्थ लाइक शेप। किसी चीज का रट्टा नहीं मारना है, ध्यान रखो, जियोइड इज अर्थ लाइक शेप। ठीक है, सो वापस आते हैं पॉइंट पे। यहां पे हमारे पास है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अच्छा मतलब मैं इनको मिलाऊंगा अल्टीमेटली तो ये क्या हो जाएगा 180। एक बात बताओ, फॉर इन केस, फॉर इन केस कि यहां पर मेरे पास है एक पर्सन ए, यहां पर मेरे पास एक पर्सन है ए, यहां पर डेट है 3rd जनवरी, यहां पर मेरे पास एक पर्सन है बी एंड द डेट ओवर हियर इज 2nd January. I can say that the difference between two of them is of almost 24 hours, क्योंकि ऑलमोस्ट 360 डिग्री कवर हो रहा है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 24 घंटे का फर्क है। ठीक है सर, अब मैंने क्या किया, अब मैंने इन दोनों को मिला दिया। एक पेज लेकर ना, डू ट्राई दिस एक्टिविटी, वेरी इंटरेस्टिंग। यहां पर ये क्या बीच में क्या मिल जाएगा 180 डिग्री, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा 180 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, इफ यू विल ऑब्जर्व जो ए 3rd जनवरी है वो इधर आ जाएगा and the B 2nd January will be over here. हुआ क्या था, 0 डिग्री which is passing from Greenwich, which is passing from Royal Observatory, which is passing from Royal Observatory, Greenwich, लंदन, ये 0 डिग्री वहां से पास कर रही है। ठीक है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी, ग्रीनविच, लंदन वहां से पास कर रही है, और फिर जैसे ही 1 डिग्री बढ़ा यहां पर, सो यहां पर 15 डिग्री बढ़ा तो 1 घंटा, 30 डिग्री 2 घंटे, 45 डिग्री 3 घंटे, इस तरह से चलता गया ना। इस तरह से हमारे पास जब आप इसको सिलेंडर बनाओगे उस पेज को और उसका बैक साइड चेक करोगे जब, तो आपको इस तरह का कुछ डायग्राम दिखेगा। जब आप इसको देखोगे यू विल ऑब्जर्व कि यहां पर आकर 24 घंटे का फर्क है इन दोनों में, बिल्कुल पास पास में पॉइंट, बट द डिफरेंस इज ऑफ 24 आवर्स। सो अल्टीमेटली हमें आकर इस 1 डिग्री को क्या बनाना पड़ा कि सर यहां पर आकर डेट चेंज करनी पड़ेगी आपको, इसको क्या बनाना पड़ा, इंटरनेशनल डेट लाइन बनाना पड़ा। इसको क्या बनाना पड़ा, इंटरनेशनल, क्योंकि यहां पर आकर डेट चेंज करनी पड़ेगी। कैसे इंटरनेशनल डेट लाइन बनाना पड़ा इसे। अब प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी बात समझो कि इफ आई मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इफ आई मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मेरी डेट क्या हो रही है, डिलीट। ठीक है, उसको छोड़ दो कि टाइम क्या चेंज होगा, लीव दैट फॉर अ मोमेंट। और अगर मैं ईस्ट से वेस्ट जाऊंगा तो मेरी डेट क्या होगी, एट 2 + 1 3, 3 - 1 2। अगर मैं इस तरफ जा रहा हूं तो मेरा एक बात सोचना, मैं 3rd जनवरी, अगर इफ आई एम स्टैंडिंग इन 3rd जनवरी, इट मींस आई हैव ऑब्जर्व्ड, आई हैव एक्सपीरियंस्ड 2nd जनवरी। मैं 3rd जनवरी मेरी घड़ी में तभी हुई होगी जब मैंने 2 जनवरी वाला दिन जिया होगा। आई एम अगेन गोइंग इनटू 2nd जनवरी, आई एम अगेन गोइंग इनटू 2nd जनवरी, और 2nd जनवरी में मैं जब जा रहा हूं, मैं जब 2nd जनवरी में जा रहा हूं तो कहीं ना कहीं मेरे को गेन हो रहा है। कैसे गेन हो रहा है, मैं 2nd जनवरी देख चुका था, मेरे को फिर से मौका मिल रहा है 2nd जनवरी देखने का। तो एक तरह से मेरे दिन के 24 घंटे बढ़ गए, है ना। दिन ऐसे तो नहीं बढ़ेंगे, ऐसे भगवान की जो घड़ी है उसमें से टाइम नहीं चेंज होता होता, वो तो आपका जब काम होना तब हो ही जाएगा। बट यहां पर अगर अपन देखें तो 3rd जनवरी से वापस 2nd जनवरी में जा रहा हूं, मैंने 2nd जनवरी मैंने जी लिया है, मेरे को फिर से जीने का मौका मिल रहा है, देयर इज गेन। कमिंग ऑन टू द अदर साइड, अगर मैं इस तरफ आता हूं तो 2nd जनवरी, मैंने अभी 2nd जनवरी मेरी आप समझ लो कि लाइफ में शुरू हुआ था, 2nd जनवरी जस्ट स्टार्टेड इन माय लाइफ। मैं 3rd जनवरी में आ गया, मेरा क्या हुआ, लॉस, मेरा क्या हुआ, लॉस। ठीक, अब हुआ क्या, ये जो 180 डिग्री वाली लाइन थी
ये काफी कंट्रीज से पास कर रही थी, काफी कंट्रीज नहीं बोलूंगा, सॉरी मैं, काफी हाँ, अपने आप में आइलैंड्स थे और कंट्रीज भी थी। तो दे दोज आइलैंड्स और दोज कंट्रीज वर गिवन एन ऑप्शन कि सर यू हैव टू डिसाइड कि आपको इस इंटरनेशनल डेडलाइन के लेफ्ट में रहना है या राइट में रहना है। यू हैव टू डिसाइड। कुछ ने लेफ्ट में रहना डिसाइड किया, कुछ ने राइट में रहना डिसाइड किया, और उस कारण से इस इंटरनेशनल डेडलाइन में कितने फोल्ड्स बनाए गए? 4 फोल्ड्स बनाए गए। फोल्ड्स इन द सेंस कि जैसे मान लो ये है इंटरनेशनल डेडलाइन, तो इस तरह से 1 2 3 और 4, इस तरह से हमारे पास 4 फोल्ड्स हैं इसके अंदर। कुछ कंट्रीज यहां पर है इस तरह से। और इस वाले रीजन में अगर मैं देखूं तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कहां से पास होती है? बेरिंग स्ट्रेट से पास होती है। बेरिंग स्ट्रेट से। व्हाट इज स्ट्रेट नाउ? बेरिंग नाम है, स्ट्रेट एक ऐसा रीजन होता है, यहां पर हमारे पास लैंड है, यहां पर हमारे पास लैंड है, और एक नैरो वाटर बॉडी है। मैं यहाँ पे ब्लू कलर ले लेता हूँ, बड़ा आसान हो जाएगा समझने के लिए। यहां पर हमारे पास नैरो वाटर बॉडी है और यहां पर बहुत बड़ी बड़ी वाटर बॉडी है। So what I can say is strait is something, strait is a narrow water body connecting two large water bodies, or strait is a narrow water body which divides, which separates two big land masses. Okay, so I hope that's totally clear to you. अच्छा, इस लाइन को हमने क्या माना? इंटरनेशनल डेटलाइन। इंटरनेशनल डेटलाइन मीन्स whenever you will cross this line either from west to east or east to west, the date in your watch will be changed. नहीं हो तो खुद कर लेना, है ना? अब आपको बता दिए कि कैसे करनी है, कहां पर ऐड करनी है, कहां पर डिलीट करनी है, अब खुद कर लेना। इंटरनेशनल डेटलाइन की हमारे बात समझ आ गई। उसके बाद इसकी, अच्छा, रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच लंदन, इसको हम क्या कहते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम। इसीलिए यू माइट हैव सीन कि इंडिया का टाइम क्या है? +5:30 जी, इसको छोड़ दो +5:30 को, लीव इट फॉर वंस, जीएमटी। इट इज जीएमटी, ठीक है? जीएमटी बोलते हैं, सो ग्रीनविच मीन टाइम। तो पूरे वर्ल्ड में जो टाइम डिसाइड होता है वो 0 डिग्री के हिसाब से होता है। जितना आप यहाँ पे इस तरह जाओगे इसमें माइनस होता जाएगा डिग्री के हिसाब से, जितना आप यहाँ पे जाओगे डिग्री के हिसाब से वो इट विल गेटिंग ऑन प्लस, इट विल गेट ऑन ऐड, गेटिंग ऑन ऐड, ठीक है? सो आई होप द डिफरेंस, और सॉरी, द रिलेशन बिटवीन longitude and date is totally clear to you. Now coming on to the next longitude, अच्छा, latitudes के हम बात करते हैं। लेटीट्यूड्स का जो रिलेशन है, यहाँ पे हमारे पास क्लियर होगा, दिस इज टोटली क्लियर। लेटीट्यूड्स का जो हमारे पास रिलेशन है, दैट इज, इसको समझना। सी, हमारी अर्थ क्या है? थोड़ी सी टिल्टेड है। द अर्थ इज टिल्टेड इस तरह से, ओके? ये अर्थ टिल्टेड है और इस तरह से हमारे पास इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सिमिलरली इधर भी हमारे पास इस तरह से इक्वेटर, कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है? ये थोड़ा सा गलत बन गया, चलो कोई बात नहीं। अब समझना इस बात को ध्यान से कि इसकी लाइट को देखना, इट इज डायरेक्ट ओवर हेयर ऑन द कैप्रिकॉर्न। अगर मैं इस तरह से बनाता हूं यहां पर इक्वेटर, कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, ये क्या है? यहां पर डायरेक्ट है, बिकॉज इन दिस पिक्चर the cancer has come nearer, due to its tilt the cancer has come nearer to the sun. Similarly in this picture the Capricorn has come nearer to the sun. Again the reason is tilt. ये tilt कितना है? This is 23.5 degree tilt है। ये tilt कितना है? 23.5 degree. Now understand, ये टिल्ट है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब एक बात बताओ कॉमन सेंस वाली, कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट सनलाइट है, बाकी सब जगह साइड सनलाइट क्या है? इतनी डायरेक्ट नहीं है, ठीक है? देयर विल बी समर इन सदर्न हेमिस्फीयर, देयर विल बी विंटर
इन नदर्न हेमिस्फीयर, सिंपल सी बात है. देयर विल बी विंटर इन सदर्न हेमिस्फीयर एंड देयर विल बी समर इन द नदर्न हेमिस्फीयर. क्लियर है यहां तक बात? नाउ समर और विंटर. अच्छा, एक छोटे 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 से पॉइंट समझना. मैक्सिमम पॉपुलेशन कहां है? मैक्सिमम पॉपुलेशन इज इन नदर्न हेमिस्फीयर. जब जहां पर मेजॉरिटी होती है उसी को बहुमत मिलता है, बहुमत होती है जहां पर, उसी की सरकार बनती है. अगर विंटर है नदर्न हेमिस्फीयर में तो इसको मैं क्या बोल दूंगा? विंटर सोलिस्टाइस. इसको छोड़ दो जो व्हाइट कलर में लिखा हुआ है, इसको मत देखो एक बार. अगर यहां पर समर है नदर्न हेमिस्फीयर में, मैं इसको क्या बोलूंगा? समर सोलिस्टाइस. सर अब ये सोलिस्टाइस का मतलब क्या होता है? थोड़ा 2 मिनट रुकना, मैं बताता हूँ. अच्छा, सोलिस्टाइस का मतलब क्या होता है, चलो बता देता हूं. अभी सन की डायरेक्ट लाइट इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नॉर्थ में नहीं जाएगी. सन की डायरेक्ट लाइट इस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के साउथ में नहीं जाएगी. सोलिस्टाइस मीन्स टू रीच एट मैक्सिमम पॉइंट. यहां पे समर में नदर्न हेमिस्फीयर के जब समर आया तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसने अपने मैक्सिमम पॉइंट पर रीच करके, मतलब इससे ऊपर डायरेक्ट सनलाइट नहीं जाएगी. इस वाले पॉइंट में इससे नीचे डायरेक्ट सनलाइट, इससे साउथ में डायरेक्ट सनलाइट नहीं जाएगी. आई होप दैट्स टोटली क्लियर टू यू. नाउ इसका मतलब सोलिस्टाइस. ठीक है, अब इनकी डेट याद करनी है. एक बात बताओ, तुम्हें सबसे ज्यादा सर्दी कौन से महीने में लगती है? दिसंबर में, है ना? इंडिया के हिसाब से देखते हैं, सबसे ज्यादा सर्दी हमें कौन सी लगती है? दिसंबर के महीने में. तो तुम्हारा, अच्छा इंडिया है कहाँ? इंडिया है कहाँ? अगर मैं अर्थ बनाता हूं, ये इक्वेटर है, तो इंडिया यहाँ पे कहीं पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ट्रॉपिकल इस वाले रीजन में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे पास होता है. तो दिसंबर में हमें सबसे ज्यादा ठंड लगती है. और द एग्जैक्ट डेट ऑफ विंटर सोलिस्टाइस 22 दिसंबर. कम ऑन द नेक्स्ट. आपको गर्मी कौन से महीने में सबसे ज्यादा लगती है? इन विच मंथ डू यू फील द मैक्सिमम हॉटनेस में? मैक्सिमम गर्मी कहाँ किस महीने? तो जून के महीने में लगती है. जून के महीने में छुट्टियां भी होती है ना, इस नदन इंडिया में हमारे पास छुट्टियां भी होती हैं. सो द डेट इज 21 जून. कौन सी डेट होगी समर सॉल्स्टिस की? 21 जून. नाउ अब इस डायग्राम को देखना, इस डायग्राम देखना. डू यू फील इस डायग्राम में और इस डायग्राम में इस टिल्ट के कारण, means the tilt is making any difference? I don't think कि अगर इस डायग्राम को आप थोड़ा सा इमेजिन करो 3D, तो द टिल्ट इज नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस. जैसे इस दो डायग्राम्स में डिफरेंस आ रहा था, इन दो डायग्राम्स में डिफरेंस ऐसा कुछ नहीं आ रहा है. ओके, सो अगर इनमें डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो आई होप यू कैन वेरी वेल नो कि इसमें सनलाइट का डायरेक्ट इंपैक्ट कहां पड़ेगा? इक्वेटर पे पड़ेगा. डायरेक्ट इंपैक्ट कहां पड़ेगा? इक्वेटर पे पड़ेगा. ठीक है, और इक्वल सनलाइट जाएगी नदर्न हेमिस्फीयर में, इक्वल सनलाइट जाएगी सदर्न हेमिस्फीयर में, इक्वल सनलाइट जाएगी नदर्न हेमिस्फीयर में, इक्वल सनलाइट जाएगी सदर्न हेमिस्फीयर में. इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? इक्विनॉक्स. अब सर ये कौन से महीने में आएगा, क्या इंप्लीकेशंस होंगे, ये समझना. इसको समझने के लिए एक चीज का हमेशा ध्यान रखना. विंटर के बाद हमारे पास क्या आएगा? स्प्रिंग. एंड समर के बाद हमारे पास क्या आएगा? ऑटम. बस सिर्फ ये चीज याद रखनी है, उसके अलावा कोई रट्टा नहीं मारना. ये टाइम कितना है? 3 मंथ्स. ये टाइम कितना है? 3 मंथ्स. यहां से आने में कितना टाइम लगाया? 3 मंथ्स. यहां से यहां जाने में कितना लगाया? 3 मंथ्स. यहां से यहां जाने में कितना लगाया? 3 मंथ्स. 3 4 जा 12 मंथ्स. एक ईयर, एक साल होगा. नदर्न हेमिस्फीयर में इस वाले पॉइंट पे देयर वाज विंटर इन द नदर्न हेमिस्फीयर. यहां पर नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? स्प्रिंग.
तो मैं इसको क्या बोल रहा हूं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स या वर्नल इक्विनॉक्स। 3 महीने लगाए, दिसंबर में 3 महीने ऐड करोगे तो मार्च आ जाएगा। कौन सी मार्च आ जाएगी, 22 मार्च आ जाएगी, 22 मार्च आ जाएगी। अब 3 महीने इधर से जून आ गया। अब इधर आएंगे हम, तो 3 महीने लगाए तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, जून। जून में 3 महीने अगर आप लगाओगे, जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर आ जाएगा। अब इधर देखना, नदर्न हेमिस्फीयर में हमारे पास क्या था, अच्छा सदर्न हेमिस्फीयर में इधर क्या हो जाएगा, समर देखी थी तो सदर्न हेमिस्फीयर में इधर क्या हो जाएगा, ऑटम हो जाएगा। जून की अगर मैं बात करता हूं, जून सोलस्टाइस से या समर सोलस्टाइस में अगर मैं बात करता हूं, तो नदर्न हेमिस्फीयर में पहले क्या देखा था, समर। अब क्या होगा, ऑटमनल इक्विनॉक्स। हमने नदर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से ही चलना है, तो इधर क्या हो जाएगा, ऑटमनल इक्विनॉक्स। इधर क्या हो जाएगा आपका, इक्विनॉक्स कौन सा हो जाएगा, ऑटमनल इधर होगी वैसे ऑटम, और इधर क्या होगा आपका स्प्रिंग, क्योंकि उसने क्या देखा था, विंटर देखा था। डेट अगेन 23rd September। I hope that is totally clear to you कि how latitude is actually deciding the seasons of the country or deciding the seasons of the world. Now latitudes का ये importance, this is the importance of the latitudes कि वो क्या डिसाइड करते हैं, हमारे पास सीजन्स डिसाइड करते हैं, सीजन डिसाइड करते हैं। अच्छा एक छोटी सी चीज, छोटा सा बात जो मैं बाद आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इसकी भी क्रैमिंग मत करो, चाहे नो नीड टू क्रैम ऑल दीज थिंग्स जो मैं आपको बताने लगा हूं अभी। कई बच्चों के दिमाग में आता है कि सर ट्रॉपिक का मतलब क्या है, क्यों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री में बनाया गया, ड्यू टू इट्स टिल्ट, ड्यू टू इट्स टिल्ट द मैक्सिमम सनलाइट जो पहुंच, डायरेक्ट सनलाइट जो पहुंच पाती, जो अभी हमने डिस्कस किया, वो कहां तक पहुंचती थी, ट्रॉपिक तक पहुंचती थी। कहां तक पहुंचती थी, ट्रॉपिक तक पहुंचती थी। ट्रॉपिक मीन्स टू मूव बैक, और यू कैन से टू रिटर्न। बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में होता क्या है, समर सॉलिस्टिस में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां पहुंचा, इक्विनॉक्स आया इक्वेटर पे पहुंच गया, विंटर सॉलिस्टिस आया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पहुंच गया, इक्विनॉक्स आया इक्वेटर पे पहुंच गया, फिर यहां पहुंच गया डायरेक्टली सन, फिर यहां पहुंच गया। कहने का मतलब है कि यहां पे जाकर, ट्रॉपिक पे जाकर द सनलाइट विच इज द इंसोलेशन जो डायरेक्ट आ रही है, वापस इक्वेटर की तरफ हो जाती है। तो दिस इज द ओनली रीजन जिसके अंदर हमारे पास डायरेक्ट सनलाइट आती है, और इसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। 5 to 10 डिग्री नॉर्थ थ्रू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 5 to 10 डिग्री south of the Tropic of Cancer, this region is known as subtropical. This region is known as subtropical. और ये रीजन क्या बोला जाता है, टेम्परेट रीजन। दिस इज नोन एज टेम्परेट रीजन बोलते हैं इसको। ओके नेक्स्ट, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री साउथ के, साउथ में, इस लाइन के साउथ में और इस लाइन के नॉर्थ में डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी नहीं आती। वैसे तो इस वाले रीजन में भी नहीं आती, बट इसमें जो सनलाइट आएगी वो 6 मंथ सनलाइट रहेगी एंड 6 मंथ्स क्या रहेगी, नाइट रहेगी। 6 1 डे 6 मंथ नाइट रहेगी। ओके सो आई होप ये डायग्राम भी आपको अच्छे से क्लियर है। ट्रॉपिक का नाम क्यों रखा, अच्छा कैंसर का नाम क्यों उठाया, कैंसर और कैप्रिकॉन द नाम, ये जो दो नाम उठाए गए हैं कैंसर और कैप्रिकॉन, ये कहां से है, ये एस्ट्रोनॉमी से, सॉरी एस्ट्रोनॉमी से है। तो इस पे हमें कुछ बताना, इसके ट्रॉपिक का मतलब, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल द लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, एंड आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ आ गई। ये थोड़ा सा ट्रिकी वाला पार्ट है, इसको ध्यान से समझ लेना। अगर इसको ढंग से समझना है तो हम इधर एक डायग्राम बना लेते हैं, सॉरी एक टेबल बना लेते हैं। टेबल में मैं यहां लिख देता हूं डेट, here is the position of the sun, here is the say season,
इधर मैं डे की लेंथ और नाइट की लेंथ इन इंडिया ओनली, इन इंडिया ओनली। अब अगर मैं इसको फिलअप करता हूं, लिसन टू मी केयरफुली नाउ। डेट से इन केस में लेता हूं 22 दिसंबर 1, पोजिशन ऑफ सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ना ये क्यों बना रहा हूं मैं? एक तो रिवीजन हो जाएगी, द फर्स्ट वर्ल्ड रिवीजन। द सेकंड पॉइंट इज कि यू विल यूज इट जब आप एंड टाइम पे रिवाइज करोगे, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ये क्या हो जाएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। सीजन की अगर मैं बात करूं, देख के देखो, रट्टा नहीं मारना, यहां पे देखना, इस वाले डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में देखना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर, सदर्न हेमिस्फीयर में समर। ठीक है, विंटर सोलिस्टिस हो गया ना। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारे पास क्या है? विंटर। एंड सदर्न हेमिस्फीयर में हमारे पास क्या है? समर। डे इंडिया के हिसाब से क्या होगा? डे कैसे डिसाइड किया आपने? लेंथ ऑफ डे, लेंथ ऑफ डे एंड लेंथ ऑफ नाइट कैसे डिसाइड किया, देखना इसको ध्यान से। कहाँ गया वो डायग्राम? जस्ट अ मिनट, पिक्चर इसी में ही देखते हैं, देखना। ये है सनलाइट, जस्ट अ मिनट, ये समझ आ रहा है? इसको देखो ध्यान से, इसको कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब देखो, ये रहा आपका एक्सिस, अब ये है इक्वेटर, ये है आपका कैंसर और ये है आपका कैप्रिकॉन। ध्यान से देखना कि जब समर विंटर सोलिस्टाइस है, जब विंटर सोलिस्टाइस है, मतलब द डायरेक्ट सनलाइट इज ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो यहां पर ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन का सनलाइट में रीजन देखना कितना कवर हो रहा है, और इसका देखना कितना कम कवर हो रहा है। इसका नाइट में ज्यादा कवर हो रहा है रीजन, और इसका नाइट में कम कवर हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं, अच्छा इस तरफ देख लूं, कैंसर कैप्रिकॉन, कैंसर है, थोड़ा गलत बन गया, रुकना, ये बनेगा इक्वेटर, कैंसर एंड कैप्रिकॉन। ये देखना, जब यहां पर डायरेक्ट सनलाइट, व्हेन द डायरेक्ट सनलाइट इज ऑन द एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का एरिया देखना कितना कवर हो रहा है, नाइट में देखना कितना कम कवर हो रहा है, यहाँ पे डे कितना कवर कर कम हो रहा है, यहाँ पे नाइट कितना ज्यादा कवर हो रहा है। हमारा इंडिया कहाँ है? यहाँ पे, या फिर यहाँ पे। तो जब विंटर सॉलिस्टाइस होगा, तो इंडिया में नाइट की लेंथ क्या होगी? नाइट की लेंथ क्या होगी? लंबी होगी। इसलिए कहते हैं ना, सर्दियां आ गई, रातें लंबी हो गई है, तो यहाँ पे क्या होंगी? नाइट्स विल बी लॉन्ग, sorry, nights will be long and the day will be sorry सारा सारा इरेज हो गया, रियली सॉरी। फिर से लिख देते हैं हम, यहाँ पर डेट आ जाएगा, पोजीशन ऑफ सन आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास सीजन आ जाएगा, डे और नाइट की लेंथ आ जाएगी, है ना। तो हमने क्या देखा था? डेट इज 22 दिसंबर, पोजीशन ऑफ सन इज कैप्रिकॉन, सीजन इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारे पास क्या सीजन हो जाएगा? विंटर। सदर्न हेमिस्फीयर में हमारे पास क्या सीजन हो जाएगा? आपका समर। इंडिया के हिसाब से डे एंड नाइट, इंडिया के हिसाब से डे की लेंथ विल बी शॉर्ट एंड नाइट की लेंथ विल बी लॉन्ग। डायरेक्ट आ रहा हूं मैं 21 मार्च पे, सॉरी 21 जून पे, सॉरी 21 जून की अगर मैं बात करूं, कैंसर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर, सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर, उल्टा हो जाएगा, लॉन्ग एंड शॉर्ट। नाइट क्या हो जाएगी? शॉर्ट, डे क्या हो जाएगा? लॉन्ग। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, अगर मैं बात करता हूं 23 मार्च की बात कर लेता हूं, इसमें मेरे पास पोजीशन ऑफ सन इज इक्वेटर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मेरे पास क्या होगा आपका? इसमें होगा आपका स्प्रिंग,
ये वैसे आना यहाँ पर चाहिए था आपको, ये आसान हो जाता। ठीक है, तो यहां से देख लेना, विंटर के बाद स्प्रिंग, सदर्न हेमिस्फीयर में आपके पास क्या आ जाएगा, ऑटम। रट्टा मारने की जरूरत नहीं, आई होप सबको समझ आ रहा होगा, इक्वल डे एंड नाइट। सिमिलरली 23rd September, अगेन इक्वेटर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में मेरे पास क्या हो जाएगा, स्प्रिंग, equal length of day and night. So I hope the role of latitudes and longitude is totally clear. I know हमने इंडियन की बात बिल्कुल भी नहीं कही इस वाले लेक्चर के अंदर. The reason is we need to understand the role of longitudes and latitudes. Only then we can jump to the Indian geography. So it was very important to understand the latitudes and longitudes first to jump to the Indian geography. I hope that's totally clear to you. ये पॉइंट्स जो मैंने लिखवाए हैं, टाइम और डेट का रिलेशन जो लॉन्गिट्यूड्स का है, रिमेंबर दिस पार्ट। ठीक है, कितनी लाइंस होती है क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद रिमेंबर दिस डायग्राम ऑल्सो। ठीक है, और ये लेटीट्यूड वाले जो पॉइंट बताए हैं, रिमेंबर दिस वाला पार्ट ऑल्सो। सो आई होप that's all for today, that's all for this lecture. See you in the next lecture. Bye then, take care.